So what's been happening is early this morning, around 7 a.m. local time, there was a raid on a building next to a boarding school in Mandalay. It was a raid involving around 20 soldiers, armoured vehicles. Now, the military is saying that they were raiding a building where they believed weapons were being held. Now, this group, calling themselves the Mandalay People's Defence Force, say that was one of their headquarters that the military raided. Now, we've seen these groups spring up across the country in response to the brutal suppression of the pro-democracy movement against the coup. We've seen those protesters take to the streets, then there was violence, and now in response what we're seeing more and more is civilians take up arms and to fight back against the military. So we should just tell our viewers, Rebecca, we have now been able to verify these pictures that we are seeing from Mandalay. We've got a team who've been working hard doing that and verifying some of the information that we've had from Myanmar's second city. But tell us more about this newly formed militia group. I mean, who are its members? The video you just saw is from BBC clipping. BBC explaining how the pro-democracy protesters in Myanmar are being harassed by the government. Government बहुत परेशान करी pro-democracy protester को. अब आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि what is pro-democracy protester and what the government is harassing them. वैसे तो ऐसे बहुत सारी democratic government करती है, पर here the government is not normal. It is a military government. Now what is the news? Why exactly is this happening? आज हम वो explain करेंगे इस Let Us Explain session में, which is brought to you by A-Cube IAS and which is presented to you by Vishakha Jagar. Now let's just understand from where it all started so that आप इस news को और इस BBC की clipping को समझ पाए. Now from where it all started is that we have to take a glimpse of this news. ज़रा देखिए इस news को. It's on the European Council which says that कि Myanmar or also called Burma, the European Union has imposed sanction on 10 individual and military control companies from February because of the subsequent repression. तो मतलब यूरोपियन यूनियन और एक्चुअली यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए हैं मिलिट्री कंट्रोल कंपनीज पे. सो ये सैंक्शन लग चुके हैं, ये क्यों लगे हैं और इस सैंक्शन का मतलब क्या है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स मूव अहेड. एक एक करके न्यूज़ के हर एक सेक्शन को एनालाइज करते हैं. नाउ इट वाज अबाउट व्हाट इज द सिचुएशन इन म्यांमार. पहले जब हम सैंक्शन वगैरह इन सबको अंडरस्टैंड करें, द क्वेश्चन इज व्हाई म्यांमार के ऊपर क्यों सैंक्शन लगाए गए हैं. यूरोपियन यूनियन और यूएस क्यों सैंक्शन लगा रहा है म्यांमार पे. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी शुड आस्क आवरसेल्फ, राइट. सो देन सैंक्शन आर अप्लाइड बाय द यूरोपियन यूनियन and US, and the reason it says that because of the military coup in Myanmar. Military coup का मतलब क्या होता है? Imagine ये आपकी सिविलियन गवर्नमेंट है, मतलब इसको पॉलिटिकल लीडर्स हेड कर रहे हैं. जैसे इंडिया में हमारी सिविलियन गवर्नमेंट रूल करती है. अब इसके नीचे कहीं आर्मी आती है, डिफेंस आता है, डिफेंस में और आपकी नेवी आएगी वगैरह, ये सारी की सारी डिफेंस फोर्सेज होती है. दैट मीन्स सिविलियन गवर्नमेंट अलग काम करती है और डिफेंस अलग काम करती है. इनफैक्ट नेहरू जी, which was our first prime minister, intentionally made them as such कि ये कभी भी इक्वल ना हो जाए, आर्मी और सिविलियन गवर्नमेंट. इनफैक्ट सिविलियन गवर्नमेंट आर ऑलवेज केप्ट बिहाइंड. अब ये कुछ ऐसा है, सिविलियन गवर्नमेंट आर लाइक ब्रेन ऑफ अ बॉडी, और वो थोड़ा सोच समझ के काम करते हैं. हाउएवर इररिस्पॉन्सिबल दे मे बी, हमारा ब्रेन भी इररिस्पॉन्सिबल हो जाता है, बट योर आर्मी आर लाइक बी एंड टी सेल्स ऑफ योर बॉडी. हाँ, वो आपकी बॉडी को इन्वेजन, डिफेंस वगैरह से बचा सकते हैं, बट क्या आप उनको ब्रेन का काम दे सकते हैं? इनफैक्ट व्हेनेवर दे हैव गॉन आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्रेन, आपको डिजीज होती है. आपको याद है ना, HIV या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कब होते हैं? जब आपके ब्रेन और या आपके जो बी और टी सेल्स या आपका जो डिफेंस सिस्टम आपके ब्रेन की सुननी बंद कर देता है या ब्रेन के हाथ में नहीं रहता. सो अ डिफेंस सिस्टम की एक जगह होती है और जब वो वही काम करे तो बेहतर होता है. But what happens in military coup is, in military coup, your defense system, that is your army, take over the civilian government and it tries to run the government. और आपको पता है, जाको काम उसी को साजे, कोई और करे तो डंका बाजे. सुना है ना, कहावत है ना ये. तो जाको काम उसी को साजे.
however stupid your military, like your civilian government can be, like it may be not listening to you, it may be taking action which are not in your favor, but it is much better for the government to be run by a civilian person than by an army. That is what has happened in Myanmar. Military coup, the army has taken over the government. Now, these two units, that is European Union and US, says that this has reached an unbearable level where the military has not only taken over the government but are acting as a severe repression against the pro-democracy protest. अब जब आर्मी ने ऐसा किया ना, सिविलियन गवर्नमेंट को एक्वायर कर लिया, तो जो प्रोटेस्ट शुरू हो गए म्यांमार में, एंड दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग बाय वेरियस मीन्स. आपने बीबीसी की क्लिपिंग देखी और उसमें आपने साफ देखा होगा द प्रोटेस्टर आर प्रोटेस्टिंग यूजिंग वेरियस इनोवेटिव मेथड. बट आपकी जो आर्मी है वो भी पीछे नहीं हट रही है और बहुत ही सीवियर रिप्रेसिव मेथड लेकर आ रही है. एंड बिकॉज ऑफ विच द मिलिट्री कूप इज बीइंग, बिकॉज ऑफ विच द सैंक्शन आर अप्लाइड बाय द यूरोपियन यूनियन एंड यूएस. तो पहले समझते हैं कि सैंक्शन का मतलब क्या है, मतलब जो सैंक्शन लगाए गए हैं उसका रिजल्ट क्या होगा. Now, the meaning of sanction is the two large conglomerate, that means two large company of the Myanmar which is owned and controlled by Myanmar armed forces. जिन companies के ऊपर sanction लगाए गए हैं ना, these are owned and controlled by the Myanmar armed forces. उनकी आर्मी कंट्रोल करती है, जिसको तत्मदाव कहते हैं. वहाँ की आर्मी को तत्मदाव कहते हैं और ये उसको रेवेन्यू प्रोवाइड करती है. तो बेसिकली सैंक्शन करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, वो उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ खत्म करने की कोशिश करे जहां से उनको पैसा मिल रहा है आर्मी को. तो उन्होंने उन लार्ज कॉन्ग्लोमरेट पे सैंक्शन लगाए हैं दैट टारगेट द इंटरेस्ट ऑफ म्यांमार मिलिट्री रेजिम. तो सीधा उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हर्ट किया है. एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरथ्रो ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो कि हम देखते हैं कि कैसे एक प्रजातांत्रिक जो सरकार थी जो कि एक सही मायने में इलेक्ट हुई थी, उसको हटा के आर्मी ने वहां पे अपना रूल स्टैब्लिश किया था. तो हम उसको पूरा डिटेल में वो करेंगे, एनालाइज करेंगे. बट बिफोर दैट लेट जस्ट अंडरस्टैंड कि सैंक्शन का क्या मतलब है. तो एक सैंक्शन का मतलब तो ये है कि वो जो कंपनीज हैं जो कि म्यांमार की आर्मी को रेवेन्यू देती हैं, उसी के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं यूरोपियन यूनियन और यूएस ने. नेक्स्ट इज दीज रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स ऑल्सो अप्लाई टू 35 इंडिविजुअल. और इसमें क्या क्या आता है, दिस इंक्लूड्स ट्रेवल बैन एंड एसेट फ्रीज. दैट मीन्स अगर इनके कोई एसेट का लिंक यूरोपियन यूनियन या यूएस से है या फिर इनकी कोई कंपनी बाहर रन कर रही है, तो उनके एसेट्स को इमीडिएटली फ्रीज कर दिया गया है. दे विल बी लाइक एन यूरोपियन यूनियन एंड यूएस सिटीजन विल बी फॉरबिडन फ्रॉम मेकिंग एनी फंड्स टू देम. तो वो कोई इनको फंड प्रोवाइड नहीं कर सकते, राइट. अब मतलब यहाँ से पैसा उनके पास तो बिल्कुल नहीं जाने वाला. ये अगर आपका म्यांमार है तो यूरोपियन यूनियन और यूएस अब इनको किसी भी तरीके से पैसा सप्लाई नहीं करेंगे. दे मे हैव टू लुक फॉर द अदर प्लेयर्स. द सैड पार्ट इज इट माइट हैव वर्कड अगर इनके पास अदर प्लेयर्स ना होते, विच इज लाइक अभी आप देखोगे फर्दर इन द स्टोरी हाउ इट अनफोल्ड्स. नाउ लेट जस्ट गो अहेड एंड अंडरस्टैंड द अदर पार्ट ऑफ स्टोरी, दैट इज प्रीवियस सैंक्शन. Even previously, European Union had put restrictions on the Myanmar. That is, it has included an arm embargo on the Myanmar. Arm embargo मतलब कि अगर dual use goods हैं तो वो आसानी से यूरोपियन यूनियन या यूएस से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. मतलब यूएस या यूरोपियन यूनियन उनको इस तरीके के इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट नहीं करेगा, सप्लाई नहीं करेगा, मतलब वो नहीं खरीद सकते इनसे. तो पैसे, एक तो पैसे पे रिस्ट्रिक्शंस अब लगाई है, आर्म्स पे रिस्ट्रिक्शंस पहले लगा दी गई थी, इस तरीके के हथियारों पे पहले ही रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी. नाउ बिफोर वी अंडरस्टैंड कि व्हाई इतना रायता फैला कैसे है, मतलब रायता इस हद तक फैल चुका है, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर वहां जा रहे हैं, कूप हो चुका है, ये सब, ये रायता शुरू कहाँ से हुआ, पहले वहां से देखते हैं कि ये शुरुआत हुई कहाँ से. एंड फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड म्यांमार इटसेल्फ. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड why Myanmar, कि why Myanmar was facing all kind of restriction. इसके लिए थोड़ा समझते हैं बैकग्राउंड. Now the background is म्यांमार ये थोड़ी सी साउथ एशियन कंट्रीज है, मांडले वगैरह के आसपास, जिसकी कैपिटल नैपीताओ है, बट इसकी लार्जेस्ट सिटी यंगून है. एंड इट इज सराउंडेड बाय इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, लाओस, थाईलैंड. ये सब क्या है, ये सब इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, ये सब इसको नेबर करते हैं, ये साउथ ईस्ट एशियन. तो म्यांमार हमारा भी नेबर है,
हमारा भी पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश वगैरह से हमारी बाउंड्रीज, ये देखिए, ये दिस इज इंडिया, ऐसे करके भूटान इज एक्चुअली नॉट इट्स नेबर, इंडिया इज इट्स नेबर। यहाँ से हमारी बाउंड्रीज मिलती है, बांग्लादेश की बाउंड्रीज यहाँ से मिलती है, चाइना तो है ही इसका नेबर, लाओस की और थाईलैंड भी है। सो लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम्स, ये थोड़ा आप ध्यान रखें बिकॉज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन द कंट्री। और देखिए ओवरऑल कितनी कंट्रीज आपकी बनती है, 5 कंट्री म्यांमार को सराउंड करती है। और नाइपीताउ इसकी कैपिटल है, नॉट यंगून। यंगून इज लार्जेस्ट सिटी जिसको रंगून भी कहते हैं, वो आपने गाना सुना है ना रंगून वाला। नाउ लेट्स मूव अहेड, दैट इज टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री ऑफ नेपाल, तभी हम प्रेजेंट को समझ पाएंगे। नाउ व्हाट हैपेंड इन द इनिशियल फर्स्ट मिलेनियम सीई, म्यांमार क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है, तो अगर चाइना से कोई ट्रेड जाता था या इंडिया से अगर कोई ट्रेड जाता था तो म्यांमार के थ्रू जाता था। सो बिकॉज ऑफ विच द गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड टू कम फ्रॉम चाइना टू इंडिया, इंडिया टू चाइना, या फिर किसी और कंट्री से हो रहा हो। इस पूरे प्रोसेस में म्यांमार में रिलीजियस आइडियाज या थॉट्स भी आ जाते थे, एंड बिकॉज ऑफ विच म्यांमार बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे बुद्धिज्म ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टैब्लिश किया, एंड दैट्स वाई म्यांमार इज अ बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री। एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री है यहाँ पे ना, फ्रॉम 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स थिराविदा बुद्धिज्म प्रॉपरली खुद को स्टैब्लिश कर चुका था। हम थोड़ा ज्यादा पीछे चले गए हैं, हम थोड़ा सा आगे आते हैं। नाउ व्हाट हैपन इज लाइक बुद्धिज्म काफी है, बट यहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम्स भी हैं, एथनिक माइनॉरिटी जो कभी यहाँ पे रहे थे, और उसकी हिस्ट्री हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। बट दिस मेजॉरिटी ऑफन टेक एक्शन अगेंस्ट देयर माइनॉरिटी, दैट इज रोहिंग्या मुस्लिम्स, और ये काम अक्सर टू अटैकिंग द माइनॉरिटी इज डन बाय द आर्मी इटसेल्फ। स्टेट कंट्रोल होता है, दिस आर्मी इज एक्चुअली यूजिंग मेजॉरिटी के इमोशंस के साथ खेलती है, उनको फियर अगेंस्ट माइनॉरिटी, रोहिंग्या मुस्लिम्स के अगेंस्ट फियर पैदा करती है, एंड इन दैट गाव ये खुद ने जो इसके कूप किया है उसकी वैलिडिटी बढ़ाने की कोशिश करती है कि हम तो आपके फेवर में काम कर रहे हैं। पर बिफोर लाइक गोइंग, इसको तो चलो मतलब दिस इज साइड पार्ट, हम समझ रहे हैं म्यांमार की हिस्ट्री। दिस इज रोहिंग्या, हाउ आर्मी इज कंट्रोलिंग इटसेल्फ, बट आर्मी का कंट्रोल शुरू कहाँ से हुआ? व्हाट हैपन इज, जब कॉलोनाइजेशन हुआ था तो ब्रिटेन कॉलोनाइज इंडिया एज वेल एज म्यांमार, बिकॉज पहले तो ये पूरा सब कॉन्टिनेंट था ना, जहाँ पे इंडिया, देन पाकिस्तान, योर बांग्लादेश एंड म्यांमार वाज वन लार्ज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और कभी कभी इंडियन डायनेस्टी वहां तक पहुंच जाती थी, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, ओनली सम टाइम। ओके, सो व्हेन इन ब्रिटेन कॉलोनाइज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो म्यांमार भी उसके क्लच में पहुंच गया था। बट ऑल्सो लाइक इंडिया, Myanmar also gained independence in 1948. Until 1962, वहाँ पे एक civilian government established हो चुकी थी. But what happened? Unlike in India, जहाँ पे because of the forward thinking of our leaders like सरदार पटेल and नेहरू, जिन्होंने इतना ध्यान रखा कि civilian government को top priority दी और आर्मी को जितना हो सके अंडर रखा civilian government के, कि कभी वो इतनी पावरफुल ना हो सके। That's why whenever you see the emotions, जब इंडिया में emotions नहीं होते कि army, respect army, I'm not saying don't respect army, but do not give them that importance कि वो civilian government के ऊपर पहुंच जाए। In fact, it is always wise कि army को अपना काम करने दिया जाए और कभी उनको politics में ना घसीटा जाए, because army in politics is not a good idea. It's like you are messing up with your immune system. Immune system has a role to play, but not to take over your brain, right? So that is a lesson जो कि हम म्यांमार से ले सकते हैं, a lesson जो कि म्यांमारी गवर्नमेंट भूल गई, and because of which the army managed to take over the civilian government in 1962, और 1960 से 2011 तक प्रॉपर आर्मी रूल वहाँ पे रहा है, राइट, एंड सिविलियन रूल was overthrown, वहाँ से हटा दिया गया था। Now in between कुछ changes आए, like before, like the changes were like, if you are going to talk about changes, is that wait a second, तो जो changes थे was the people started protesting. People realized the army rule is not good for them, and they started protesting. And in that protest, Aung Suu Kyi became their leader. मतलब वो उनकी आइकन बन चुकी थी. To the extent army was so afraid of her कि she was put into detention for almost 15 years.
From 1989 to 2010 she has spent her life in house arrest to the extent वो कभी अपने बच्चों से नहीं मिल पाई और अपने हस्बैंड से भी उस टाइम पे ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाती थी बिकॉज दे वर ब्रिटिश सिटीजन्स एंड दे वर लिविंग इन ब्रिटेन एट दैट टाइम. बट आंग सूची continued her protest for the civilian government in the country. And for her bravery at that time, she was given Nobel Prize in 1991. 1991 में उनको Nobel Prize भी दिया गया था. And this entire people's protest took such a great form that 2007 का जो Saffron Revolution है वो तो बहुत ही पॉपुलर हो चुका था. Where the monks came up on the road. जो आपके monk हैं वो रोड पर आ गए और वो डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट करने लगे. वहाँ के जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं वो रोड पे आके एंड दे एक्चुअली दिस टॉक्ड अबाउट डेमोक्रेसी इन द म्यांमार एंड नॉट द रूल बाय द आर्मी. और इसमें आपके टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बैंक ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट है, एवरीबडी पार्टिसिपेटेड. एंड मिलिट्री इस चीज से इतनी खफा हो चुकी थी, इतनी डर चुकी थी दैट ऑन 27 मार्च मोर देन 100 पीपल वर किल्ड. मोर देन 100 लोगों को मार दिया गया था. And that became a history. That is a history जो कि अब तक याद की जाती है. And because of this pressure जो कि इतने टाइम तक build हुआ, the army has to take some changes. उसको कुछ changes लाने पड़े. That is the change in the government. In 2011, a new government began changes in the in the government by making a slow return to the civilian rule. तो ऐसा नहीं था कि आर्मी चली गई थी पिक्चर से, नहीं. In fact, civilian rule तब भी रहा था. अब नई गवर्नमेंट कुछ इस तरीके की आई कि 25% कंट्रोल तभी भी आर्मी का था ही डी फैक्टो जो नई गवर्नमेंट बन रही थी. 75% कंट्रोल सिविलियन का था. अब आप बोलोगे 75% फिर भी काफी है, 75% से तो बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं. नहीं, इट वॉज एज सच की जो हेल्थ, एजुकेशन वगैरह वगैरह इस पे तो ये लोग आसानी से चेंज कर सकते थे. बट इफ इट इज अबाउट चेंजिंग द गवर्नमेंट, द शेप ऑफ द गवर्नमेंट, तो मोर देन 75% की मेजोरिटी चाहिए थी. और वहां पे आर्मी का बिकॉज इट हैज 25% स्टेक, सो इट वाज नॉट पॉसिबल कि कोई मेजर चेंजेस लाई जा चुके. इनफैक्ट जो सिविलियन गवर्नमेंट आती थी वो फुल फॉर्म मेजोरिटी से आती थी, अभी भी वो गवर्नमेंट को चेंज नहीं कर सकती थी बिकॉज डी फैक्टो 25% रिजर्वेशन आपकी आर्मी को दिया जा रखा था. बट लाइक कुछ होना इज मच बेटर देन नथिंग होना. भागते भूत की लुंगी अच्छी. That is the case in Myanmar. So not having a civilian government at all was not better. At least a form of civilian government was much better. It was like India. जैसे हमारा जो पूरा ओवरऑल इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, हमें एक साथ आज़ादी नहीं मिली थी. धीरे धीरे हमें जो जो मिलता गया हमने उसके साथ बिल्डअप करते चले गए. म्यांमार ऑल्सो थॉट कि सेम चीज उनके साथ होगी. और 2015 के इलेक्शन में NLD, which is actually led by Miss Aung Suu Kyi, she openly contested election like in 25 years and they actually won as well. तो इनकी गवर्नमेंट बननी थी. But then it did not behoove the military government and the military came back. It forced the opposition जो नए इलेक्शन हुए जिसमें आंग सू ची फुल फॉर्म में वापस आ गई थी. They started contesting the क्या कहते हैं उसको, the legibility और आई एम सेइंग दी लीगैलिटी ऑफ द इलेक्शन की वो कितने साफ तरीके से किए गए थे. द आर्म फोर्सेस स्टार्टेड क्वेश्चनिंग इट. और एक्चुअली आर्म फोर्सेस ने खुद नहीं सवाल किया, उन्होंने क्या किया, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाई. ऑपोजिशन वो क्वेश्चनिंग कि कितने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट किए गए हैं. मिलिट्री गवर्नमेंट व्हाट इट डिड, इट एक्चुअली प्रमोटेड द ऑपोजिशन सस्पिशन. उसको फ्यूल करना शुरू कर दिया, उसको आग दी, उसको धुआं दिया. ऑपोजिशन को खुद भी रियलाइज नहीं हुआ चलो ठीक है वो अगर आज हार गए हैं तो कल जीत सकते हैं, बट इसके लिए आर्मी को तो सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज इसमें 2 बिल्ली की लड़ाई में फायदा बंदर का हो रहा है, राइट. सो दैट इज व्हाट समथिंग it was worried about. So this what made this in the entire process military came back. Military coup again happened और आंग सूची की गवर्नमेंट को हटा दिया गया. दो इलेक्शन कमीशन सेट की क्लियर एविडेंसेस वर देयर दैट जो इलेक्शंस थे वो काफी फ्री एंड फेयर थे, उसमें किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं था, बट मिलिट्री ओनली नीडेड अ रीजन. आई होप विद दिस यू हैव अंडरस्टूड द हिस्ट्री ऑफ म्यांमार कि म्यांमार में अब तक क्या से क्या हुआ, कहाँ से लेके कहाँ तक हुआ. नाउ व्हाट अबाउट नाउ, अब पावर किसके पास है? सिंस मिलिट्री कूप हो चुका है तो मिलिट्री जनरल के पास, मिलिट्री कमांडर के पास पावर है, दैट इज मिंग ऑन्ग.
Min Aung Hlaing has power right now, and he's controlling the Myanmar military, which is also called Tatmadaw. And ever since then, he has received the international condemnation. But this doesn't work on him, right? This does not work on him, and international condemnation has nothing to do with like कि ये अपने आप को हटाने वाले. But don't be disheartened by this. International condemnation has worked in the past, and there is a possibility कि अब भी काम कर सकता है. Now in this process आपका सवाल उठेगा, what about Myanmar Rohingya refugees? What about Rohingyas, right? As I talked earlier, कि Myanmar is a majority Buddhist country, and minority Rohingyas के साथ काफी गलत हुआ. And army utilized this emotion so that वो अपने control को वहाँ पे रख सके, because it is easy to play with people's emotion. सीधा सीधा rationality से वो नहीं लड़ पा रहे थे. Now the question with Myanmar is that Myanmar consider them as illegal immigrant. वहाँ की सरकार उन्हें illegal मानती है और citizenship deny कर रखी है, and thousands of Rohingyas are killed in the process. To the extent 7 lakh have fled to Bangladesh because of army crackdown in 2017, और अब वो बांग्लादेश में रह रहे हैं. Presently, their situation is right now illegal only. And in the process, in 2019, Miss Aung Suu Kyi, जब उनके पास थोड़ी सी सरकार आ चुकी थी वापस, she was called into International Court of Justice, and she was asked about the status of like Rohingya, where she denied that military had committed genocide. अब यहाँ पे she was fighting against military, she was fighting for democracy. Democracy means right of all people, and there वो इन्होंने मिलिट्री के साथ इस तरीके से हाथ अपना लिए कि वे भूल ही गए कि मिलिट्री ने जो जेनोसाइड किया है दैट इज ऑल्सो अ ह्यूमन राइट वायलेशन, जिसकी वजह से मिस आंग सूची की रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा गहरा घाव झेलना पड़ा था. एंड बिकॉज ऑफ विच आंग सूची, सो मेनी पीपल टॉक्ड अबाउट कि शी शुड बी स्ट्रिप्ड ऑफ अ नोबेल प्राइज, कि जो नोबेल प्राइज उनको दिया गया था, शी डजंट डिजर्व इट बिकॉज नोबेल प्राइज इज अबाउट पीस, इट इज अबाउट सोशल जस्टिस. एंड सोशल जस्टिस डज नॉट मीन कि म्यांमार की सिर्फ मेजॉरिटी को ही मिलना चाहिए. क्या वहाँ की माइनॉरिटी को ये अधिकार नहीं है क्या? सो दिस वाज अबाउट, बट लाइक दैट्स व्हाई पीपल वर नॉट, म्यांमार से इतना फोकस हट गया था बिकॉज ऑफ द डबल स्टैंडर्ड. येट डेमोक्रेसी डिजर्व अ चांस, डेमोक्रेसी ऑलवेज डिजर्व अ चांस, एंड बिकॉज ऑफ विच we are going to talk about after which what was international response. Though Miss Aung Suu Kyi forgot her standard internationally, these standards were not forgotten. In fact, UNSC came up with a particular proposal where it actually condemned the coup. UNSC ने coup को condemn करने की कोशिश की. But as you know, UNSC में 5 permanent members होते हैं and 10 non-permanent members होते हैं. And veto of the 5 permanent member matters, जिसमें से एक है चाइना. If the one members vetoed, तो वो चीज़ आगे नहीं जाती. So when UNSC came up with the condemnation of the coup, China blocked the condemnation because it does not want the international intervention in Myanmar. अब चाइना की थोड़ा रीजन देखा जाए कि चाइना इतना म्यांमार को सपोर्ट क्यों कर रहा है, उसका रीजन ये है कि चाइना ने बहुत सारे प्रोजेक्ट ला रखे हैं म्यांमार में. इट हैज़ प्लान डीप वाटर पोर्ट है, यहाँ पे इसका इकोनॉमिक जोन भी बना रखी है, कॉपर माइनिंग भी बना रखी है. दे हैव कंस्ट्रक्टेड अ डैम एज वेल. ऑयल एंड गैस पाइपलाइन के बारे में बात कर रहे हैं. तो चाइना ने पहले ही अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट मिलिट्री के साथ स्टैब्लिश कर रखे हैं. दैट इज द रीजन जब यूरोपियन यूनियन और यूएस वहाँ पे इसको मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, म्यांमार हैज़ अ वे जहाँ से वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि चाहे वो दोनों म्यांमार की मिलिट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हर्ट करने की कोशिश करें, बट लाइक म्यांमारी मिलिट्री कैन सस्टेन, और यहीं से उनकी ना ताकत आती है कि दे कैन कंटिन्यू फॉर लॉन्ग. और प्रो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की जो लाइक उनके जो एफर्ट हैं वो कहीं ना कहीं रद्दी भर हो जाते हैं या कम हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल और आई वुड से थर्ड पार्टी in unwanted interference. Now let's just move ahead. Now बाकी countries का क्या response था? Numerous country condemned the military takeover. बहुत सारी countries ने condemn किया. European Union, US and UK you have seen कि इन्होंने तो sanctions भी लगा दिए. And South Asian countries have come together pursuing for diplomatic efforts to end the crisis. This is where even India stands. India भी we talked about कि slowly steadily military power सिविलियंस को रिटर्न कर देनी चाहिए. सो इन सॉफ्ट फूड वी आर कंडेमिंग, हम डायरेक्टली नहीं कर रहे.
I hope this entire video was informative to you. I hope you've got what you're looking for. And if that is the case, like, subscribe and connect to A-Cube IAS. Now stay at home, stay healthy, stay safe and stay connected to A-Cube IAS.